Hello everyone. Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year questions. Let's begin today's session. The first question is, which article of the Constitution of India provides the right to constitutional remedies? Article 12, Article 19, Article 21 और Article 32. भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 32? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, आर्टिकल 32. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 32. The right to constitutional remedies is enshrined under Article 32 of the Constitution of India. This right allows the citizens of India to approach the Supreme Court to protect their fundamental rights. संवैधानिक उपचार का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत निहित है. यह अधिकार भारत के नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which writ is used to enforce the performance of public duties by authorities? Habeas corpus, prohibition, mandamus और quo warranto. अधिकारियों द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों के निष्पादन को लागू करने के लिए किस रिट का उपयोग किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेध, परमादेश या quo warranto? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, mandamus. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परमादेश. The term mandamus literally means command. This remedy is used to enforce the performance of public duties by various types of public authorities. A writ of mandamus compels the person or body to whom it is directed to undertake some specific action. परमादेश शब्द का शाब्दिक अर्थ है आदेश. इस उपाय का उपयोग विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सार्वजनिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए किया जाता है. परमादेश की रिट उस व्यक्ति या निकाय को बाध्य करती है जिसे यह निर्देश दिया जाता है कि वह कुछ विशिष्ट कार्रवाई करे. Next question is, what does Section 29A of the Arbitration and Conciliation Act pertain to? Appointment of arbitrators, time limit for arbitral award, cost of arbitration और procedure of proceedings. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 29A किससे संबंधित है? मध्यस्थों की नियुक्ति, मध्यस्थता पुरस्कार के लिए समय सीमा, मध्यस्थता की लागत या कार्यवाही की प्रक्रिया? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, टाइम लिमिट फॉर आर्बिट्रल अवार्ड. इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मध्यस्थता पुरस्कार के लिए समय सीमा. In the recent case of Chief Engineer PWD versus Messrs BSc&C and CJV, the Supreme Court ruled that a High Court without original civil jurisdiction cannot extend the time limit for passing an arbitral award. Section 29A of the Arbitration and Conciliation Act deals with the time limit for arbitral award. मुख्य अभियंता PWD बनाम मेसर्स BSc&C and CJV के हालिया मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि प्रारंभिक सिविल अधिकारिता के बिना कोई उच्च न्यायालय मध्यस्थता पुरस्कार पारित करने की समय सीमा नहीं बढ़ा सकता है. मध्यस्थता और सुलह अधिनियम की धारा 29A मध्यस्थता पुरस्कार के लिए समय सीमा से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which section of the Trademarks Act prohibits the registration of a similar trademark? Section 9, Section 18, Section 21 और Section 11. ट्रेडमार्क अधिनियम की कौन सी धारा समान ट्रेडमार्क के पंजीकरण पर रोक लगाती है? धारा 9, धारा 18, धारा 21 या धारा 11? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, सेक्शन 11. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, धारा 11. In a recent case of Glenmark Pharmaceuticals Limited versus Gleck Pharma Private Limited and others, the Bombay High Court ruled that structurally and phonetically similar trademarks cannot be registered for drugs treating the same ailment. Section 11 of the Trademarks Act of 1999 prohibits the registration of a trademark that is similar to an already registered trademark if it is likely to cause confusion or deceive the public. Glenmark Pharmaceutical Limited बनाम Gleck Pharma Private Limited और अन्य के हालिया मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संरचनात्मक और ध्वन्यात्मक रूप से समान ट्रेडमार्क एक ही बीमारी का इलाज करने वाली दवाओं के लिए पंजीकृत नहीं किए जा सकते हैं. ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 की धारा 11 किसी ऐसे ट्रेडमार्क के पंजीकरण पर रोक लगाती है जो पहले से पंजीकृत ट्रेडमार्क के समान है, अगर इसे जनता में भ्रम पैदा होने या धोखा देने की संभावना है. द लास्ट क्वेश्चन इज, अंडर ऑर्डर 6 रूल 17 ऑफ CPC, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स कैन बी अलाउड अप टिल व्हाट स्टेज ऑफ द सूट? एट एनी स्टेज, स्टेज ऑफ इश्यूज फ्रेमिंग, स्टेज ऑफ समन्स इशूइंग और स्टेज ऑफ फाइनल हियरिंग. CPC के आदेश 6 नियम 17 के तहत वाद के किस चरण तक दलीलों में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है? किसी भी चरण में, मुद्दे तय करने का चरण, समन जारी करने का चरण या अंतिम सुनवाई का चरण? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, एट एनी स्टेज. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसी भी चरण में.
Under Order 6, Rule 17 of the Code of Civil Procedure, the amendment of pleadings can be allowed at any stage of the suit. However, no application for amendment is allowed after the trial has commenced. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 6 नियम 17 के तहत मुकदमे के किसी भी चरण में दलीलों में संशोधन की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि मुकदमा शुरू होने के बाद संशोधन के लिए कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है। Before we wrap up, here's a question for you. What is the maximum duration of imprisonment that can be imposed on persons found to have committed the offense of affray? 1 month, 2 months, 3 months or 6 months? दंगा फसाद का अपराध करने वाले व्यक्तियों पर अधिकतम कितनी अवधि तक कारावास लगाया जा सकता है? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।